یہ بھی درشک جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اب جو پروسیڈر کا آغاز ہوا ہے کب تک ان کی پیشی متوقع ہے، نوٹس کب تک بھجوائے جائیں گے، اور پہلی پیشی پہ ان کے ساتھ کیا حشر نشر ہونے والا ہے، جج صاحبان کیا پوچھ سکتے ہیں اور یہ کیا بتا سکتے ہیں، ان کے پاس کیا دلیلیں ہوں گی سر؟ دیکھیں، میں ایک وکیل ہوں اور میں ایک استاد بھی ہوں، قانون پڑھاتا ہوں. تو مجھے پاکستان، ہندوستان سمیت دنیا کا جو قانون ہے، جو قانون کی جو تعلیم ہے، وہ مجھے یہ کہتی ہے، یہ مجھے اجازت دیتی ہے کہ آپ جب میٹر سب جوڈائس ہو، جب میٹر کورٹ میں ہو، عدالت میں ہو، تو آپ کورٹ کے اس چلتے ہوئے کیس کی نیچر پر جو ہے آپ ڈسکس کر سکتے ہیں، لیکن پروسیڈنگز کیا ہونے والی ہیں اور کیا مستقبل میں ہوگا، اس پر آپ ڈسکس نہیں کر سکتے. اس لیے میں اس بات سے گریز کروں گا جواب دینا کہ آگے کورٹ کیا فیصلہ کرے گی یا کورٹ میں کیا پروسیڈنگز ہوں گی، اس کا تو میں جواب نہیں دے سکتا کیونکہ کورٹ میں میٹر جا چکا ہے. لیکن میں یہ بات ضرور کروں گا کہ کیس جو ہے جلدی، جو ایک فائل ہو چکا ہے ہماری طرف سے، ایک سے زیادہ کیس فائل ہونے والے ہیں. ہم ملٹیپل کیسز فائل کرنے والے ہیں. جب یہ ملٹیپل کیسز فائل ہوں گے تو ان کی چیخیں نکلیں گی، اور ان کی چیخیں جو ہے نا، اے پی سنگھ کی، سیما حیدر کی، سچن مینا کی، وہ 7 سمندر پار سنائی دیں گی. جی بالکل. تو سر سیما ڈپورٹ ہوگی یا پہلے اس کو سزا دی جائے گی، ہندوستان میں رہے گی اس کے بعد ڈپورٹ ہوگی؟ اس حوالے سے آپ کی کیا توقعات ہے، کیا آپ کہیں گے سر، آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں، ہندوستان کا جو قانون ہے، جو سیکشن 14 آف فارن ایکٹ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ سیما کو جو ہے سزا بالکل ہوگی، کیونکہ سیما کے پاس ویلڈ جو ڈاکیومنٹس انڈیا میں انٹر ہونے کے نہیں ہیں. تو جس کے پاس کسی ملک میں، ہندوستان اسپیشلی، اس کے کوئی انلیگل امیگرینٹ جو داخل ہوتا ہے، جس کے پاس نہ ویزا ہو، نہ ایسی کوئی پرمیشن ہو، تو سیکشن 14 کے تحت اس کی سزا یقینی ہے. تو قانون کے مطابق سیما کو سزا ضرور ہوگی، اور اس کے بعد، سزا کے بعد، جو ہندوستان کی جو فارن منسٹری ہے وہ مزید فیصلہ کرے گی کہ اس کو ہندوستان میں جیل میں رکھا جائے یا اس کو پاکستان ڈیپورٹ کیا جائے. لیکن بچوں کے حوالے سے، چاہے ہندوستان کا قانون ہو، چاہے پاکستان کا قانون ہو، چاہے اقوام متحدہ کا قانون ہو، وہ یہ کہتا ہے کہ بچے جو ہے نیچرل گارجن ہے، والد ہے، اس کو ملنے چاہیے. جب ماں اور باپ دونوں میں سے ایک کرمنل کے لیے ہارمفل ہو جاتا ہے، تو قانون یہ کہتا ہے کہ ان دونوں میں سے جو کرمنل نہیں ہے، تو اس کے پاس بچوں کی کسٹڈی رہے گی، تاکہ بچوں کی پرورش جو ہے اچھی ہو سکے، اور بچے جو ہے کرمنل ایکٹ سے اور کرمنل سوسائٹی سے دور رہیں. تو قانون یہ کہتا ہے. اب اس کیس میں جو غلام حیدر ہے، وہ، اس کا کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں ہے، وہ معصوم ہے. دوسری طرف جو سیما ہے، اس نے گنونا جرم کیا ہے، اور اس نے 7 سمندر پار کیے، یعنی بارڈر کراس کیا، ہندوستان آئی ہے. ایک ہینس قسم کا کیس ہے. اب قانون کسی بھی صورت میں اجازت نہیں دے سکتا ہے کہ سیما کے حوالے بچے کیے جائیں، ایک کرمنل کے پاس بچے کیے جائیں، اور بچے وہاں پر ایک کرمنل کے ساتھ رہ کے وہ کرائم سیکھیں اور کرمنل جو ہے وہ ایکٹیویٹیز میں ملوث رہیں. تو اس وجہ سے قانون دنیا کا کوئی بھی اجازت نہیں دے گا کہ ایک کرمنل کے ساتھ جو ہے بچے چھوڑے جائیں. جی بالکل. تو سر اب جیسے کہ پروسیڈنگ کا آغاز ہو چکا ہے، تو بچوں کو کوئی خطرہ تو نہیں ہے؟ کیونکہ یہ جو سیما ہے، اس نے کئی دفعہ دھمکی دی تھی میڈیا پہ آ کے کہ اگر کچھ ہوگا، ڈپورٹ کرنے کا کچھ پلان کیا گیا یا مجھے ڈپورٹ کیا گیا، تو میں اپنے آپ کو بچوں سے میں ختم کر دوں گی. تو اب آپ کو لگتا ہے کہ بچے محفوظ ہیں مومن ملک صاحب کے آنے کے بعد؟ دیکھیں، بچے جب تک سیما کے پاس موجود ہیں، بچے جب تک سچن مینا کے پاس موجود ہیں، بچے جب تک نیتر پال سنگھ مینا کے گھر میں موجود ہیں، تب تک جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے. پھر چاہے ہندوستان میں روشن علی عظیم ہو، چاہے مومن ملک ہو، چاہے تنویر ہو، چاہے غلام حیدر خود ہو، بچے محفوظ بالکل بھی نہیں ہے. کیونکہ سیما ایک کرمنل ہے. سیما بغیر کسی ویزا، پاسپورٹ کے ایک بارڈر کے، اس کو یہ بھی ڈر نہیں لگا کہ بارڈر سیکورٹی فورس ہے، پیراملٹری فورس ہیں، وہ بارڈر کراس کرتے گولیاں بھی مار سکتے تھے اور جان بھی جا سکتی تھی بچوں کی. تو میں نہیں سمجھ سکتا کہ سیما کے پاس بچے محفوظ ہے. سیما کی یہ جو دھمکی ہے کہ میں نقصان پہنچاؤں گی بچوں کو اور خود کو بھی نقصان پہنچاؤں گی، یہ جو دھمکی ہے سیما کی، اس کو سنجیدگی سے لیا جائے، یہ پازیٹیو لیا جائے. یہ بالکل سیما ایسا کر سکتی ہے، بچوں کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہے، خود کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہے. اس حوالے سے میں ہندوستان کی جتنی بھی جوڈیشل جو تنظیمیں ہیں،
मार्शल्स हैं, हिंदुस्तान की जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, हिंदुस्तान की जो फेडरल गवर्नमेंट है, बच्चों की तंजीमें जितनी भी हैं, चाहे नेशनल हो, प्रोविंशियल हो, या यूनाइटेड नेशन के तहत जो काम करने वाली तंजीमें, सबसे गुजारिश करता हूँ, आप काइंडली बच्चों की जिंदगी जो है उसको आपको बचानी है। ये एक साइकोलॉजिकल इल है, ये सीमा हैदर सेक्स मीनिएट है, और ये एक क्रिमिनल है। इसके साथ बच्चों का साथ रखना जो है वो सही नहीं होगा, ये बच्चों के लिए हार्मफुल है। जी, तो अब मोमिन मलिक साहब ने बच्चों के हवाले से क्या किया है? उनका जो मेडिकल जांच वगैरह है वो कराई जाएगी सर? देखिए, बच्चों की मेडिकल जरूर कराई जाए, और बच्चों की जो जिस जो साइकोलॉजिकल जो इलनेस मेरे ख्याल में बिल्कुल हो चुकी होगी, क्योंकि वो नेचुरल गार्जियन से दूर हैं, और एक ऐसे घर में हैं जहाँ पर कंप्लीटली एटमॉस्फेयर और जो उनका हालात हैं वो चेंज हैं, और उनका रिलीजियस भी जबरदस्ती चेंज कराया गया है, और जबरदस्ती उसको हनुमान चालीसा समेत वो मजहबी जो किताबें वो पढ़ाई जाती हैं, याद कराए जाते हैं। ये बच्चों पे एक जो है ज़हनी दबाव का कारण हो सकता है, बजाय कि बच्चों को जबरदस्ती कोई रिलीजियस किताबें, चाहे वो मुसलमानों की हो, चाहे हिंदुइज्म की हो, चाहे सिखिज्म की हो, वो पढ़ाई जाए। बच्चों को जो है वो जो दुनियावी इल्म है वो पढ़ाया जाए। अब सीमा हैदर, एपी सिंह की ये चाल है कि बच्चों को हनुमान चालीसा इसलिए याद कराया जाए ताकि ऐसा लगे कि बच्चे हिंदुइज्म में, सनातन धर्म में बड़े खुश हैं, उनको अपना लिया है, और दुनिया को ये, हिंदुस्तान को ये मैसेज जाए कि बच्चे जो है यहाँ पर खुश है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बच्चे मासूम होते हैं, वो इस एज पर वो है नहीं पहुंचे हैं, उसको दीन का न पता होता है, न दुनिया का पता होता है। इस हवाले से ये जबर किया जा रहा है, जुल्म किया जा रहा है बच्चों पर इनकी तरफ से। मैं इसकी भी शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। सीमा सिर्फ अपनी जो है सेक्स भी, एक अपनी जो जिनसी लज्जत जो है वो बचाने के लिए बच्चों पर जुल्म कर रही है, जबर कर रही है। जबरी जो है बच्चों का जो मजहब है वो तब्दील सीमा कर रही है, और उनको जो रिलीजियस किताबें हैं जबरदस्ती उनको याद कराई जा रही है, बजाय कि उनको स्कूल की वो जो नर्सरी की जो पोएम्स होती हैं, या जो अच्छी अच्छी बातें होती हैं वो सिखाई जाए, वो याद कराई जाए। तो ये इन पर जबर जो है वो जारी है। सर जी, आप मीडिया से काफी दिन गायब रहे। इस दौरान तशद्दुद की खबरें सामने आई, और इस हवाले से गुलाम हैदर भाई ने ये दावा किया था कि उनके पास सबूत मौजूद है, सीमा के ऊपर तशद्दुद किया गया है। क्या वो आपके पास भी सबूत है, और आप क्या कहेंगे उसके ऊपर तशद्दुद किया गया है सर? देखिए, मैं मीडिया से बिल्कुल दूर रहा हूँ, और इस हवाले से न मेरा इंटरव्यू आया है, न ही मैं मीडिया की वो खबरें जो है वो सुन सका हूँ। हाँ, जो हमारी बातें होती थी, जो हमारी टीम जो सुनती थी, जो हमारी टीम बताती थी, वो मुझ तक जरूर पहुंचती थी। इस हवाले से मुझ तक ये बात जरूर पहुंची थी कि सीमा को फलां डे पर जो है तशद्दुद हुआ है। इस हवाले से मैं ये कहना चाहूंगा कि आज से कोई 2 महीना या 2.5 महीना आप माजी में जाएंगे, तो मैंने 2-3 इंकशाफात किए थे, कोई ब्रेकिंग चलाई थी कि सीमा पर रबुपुरा में तशद्दुद हुआ है। सीमा को सचिन मीणा ने बहुत मारा है, तशद्दुद किया है। तो दूसरे दिन सीमा मीडिया पर आई थी, तो तमाम जो यूट्यूबर्स हैं उन्होंने बड़ा मजाक उड़ाया था कि सीमा तो बड़ी खुश है, सीमा को तशद्दुद नहीं किया गया है, रोशन अली अजीज ने झूठ बोला है। तो देखिए, इस हवाले से जो मेरे जराए हैं वो रबुपुरा में मौजूद हैं, वो सीमा के घर के आसपास मौजूद हैं, मेरे पास सबूत हैं। मेरे साथ जो है राब्ते में कुछ ऐसे लोग हैं, वो डायरेक्टली मुझे रिपोर्ट करते हैं, मैं उनका अब नाम नहीं लेना पसंद करूंगा। जब आज से 2 महीने पहले सीमा पर जो तशद्दुद हुआ था, वो इस तशद्दुद से बड़ा संगीन था। सीमा पर ऐसा तशद्दुद हुआ था कि मैं मीडिया पर वो बता नहीं सकता हूँ कि संगीन किस्म का, इवन के सीमा के जो जिस्म है उस पर जो है वो निशानात आ गए थे, सीमा के प्राइवेट पार्ट्स पर निशानात आ गए थे। जो बकोल वहां पर जो लोग थे उसकी कम्युनिटी के, जो उनके घर में, वो इसलिए ये दावा था, कह रहे हैं कि जो सीमा पर तशद्दुद हुआ था वो सरेआम घर में घर वालों की मौजूदगी में हुआ था। तो इस हवाले से सीमा के पूरे जिस्म पर तशद्दुद के निशानात पाए गए थे। वो बड़ा वो वहां पे घर की चार दीवारी से बाहर उन्होंने ये खबर नहीं आने दी थी, लेकिन रोशन अली अजीम तक वो बात पहुंची थी। मैंने मीडिया पर वो हाईलाइट की थी। आप पुराने इंटरव्यूज रोशन अली अजीम के या दीगर लोगों के देखेंगे, उसमें मेरे इंटरव्यूज मौजूद है। सीमा पर तशद्दुद किया गया है, शदीद किस्म का तशद्दुद किया गया है, लेकिन लोगों ने कहा ऐसा नहीं है, सीमा मीडिया पर आई है, बड़ी खुश है, और उन्होंने सेलिब्रेशन की है। मेरी बात सही साबित हुई।
आज सही साबित हुई, क्योंकि सीमा पर फिर तशद्दुद हुआ, क्योंकि ये बात इसलिए सही साबित हुई क्योंकि सीमा के फेस जो है वहां पर निशानात थे, सीमा को मारा गया, तशद्दुद किया गया। इस मर्तबा सीमा के जिस्म पर चोटें नहीं आई, सीमा के फेस पर आई, तभी वो बात तय हुई। तो मेरे कहने का मकसद यही है कि सीमा पर तशद्दुद तो माजी में भी होता रहा है, अब भी होता रहा है, सीमा बड़े जुल्म पर है, अताब पर है। लेकिन ये इस एक ऐसी बदबूदार किरदार औरत है जिसका जो है वो मुकद्दर यही तशद्दुद है। ये एक एग्जाम्पल है हिंदुस्तान समेत पूरी दुनिया के औरतों के लिए कि आप इसे धोखा देंगी अपनी फैमिली को, अपने खानदान को, अपने बच्चों को यार करके, आप रंग रलियां मना के आप घर बर्बाद करके निकलेंगी यार के साथ, तो ये तशद्दुद जो है वो आपका मुकद्दर होगा। तो सीमा पर तशद्दुद बिल्कुल होता है। सर जी, रबुपुरा में जो सीमा गैंग है, उसका एक अहम व्यक्ति, एक अहम क्या कहते हैं मेंबर, राजवर्धन साहब, वो सीमा से अलग हो गए। आप क्या समझते हैं, ये चाल है या एक हकीकत है कि वो वाकईतन सीमा से अलग हो चुके हैं? क्योंकि कुछ उनकी अंदर की कुछ कॉल्स हमारे पास हैं जिसमें वैसे तो वो मीडिया पे आके ये कह रहे हैं कि हैदर भाई के साथ हूँ, मेरा पैगाम हैदर भाई तक पहुंचा दीजिए, वो मुझे कॉल करें। लेकिन हमारे पास कुछ कॉल्स उनकी हैं पसे पर्दा कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। तो आप तक वो कॉल, ऑडियो कॉल पहुंची है सर? मेरे पास वो तमाम सबूत हैं तनवीर। जी मैं बार जी बार जी। कहता हुआ आ रहा हूँ, मेरे पास तमाम सबूत हैं। वो सबूत चाहे सीमा के हों, वो सबूत चाहे सचिन मीना के हों, वो सबूत चाहे एपी सिंह के हों, या वो नेता जो बीजेपी से जिनका ताल्लुक है, जो सीमा हैदर की सपोर्ट करना चाहते हैं, या वो लोग जो नेपाल, यूएई और हिंदुस्तान में सीमा और एपी सिंह का सपोर्टर रहे हैं, उनके तमाम शवाहिद, तमाम सबूत मेरे पास मौजूद हैं और मैं बड़ी गहराई से इन सबको जानता हूँ। ये राजवर्धन साहब सिंह जो है ये खुद एक क्वेश्चन मार्क है। और इनको, इनके साथ बड़ी एक हिंदुस्तान में गेम हुई है। वो गेम हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज को पता है, हिंदुस्तान की आर्मी को पता है, हिंदुस्तान की रॉ को पता है, और जो बड़े पाए के बीजेपी के नेता हैं उनको पता है कि ये मामला क्या हुआ है। तो हम नहीं चाहते कि हम किसी भी पॉलिटिकल बात करें, या हम कोई भी किसी पॉलिटिकल तंजीम पर बात करें, क्योंकि हिंदुस्तान का ये इंटीरियर मामला है, अंदरूनी दाखिली मामला है, और आगे भी हिंदुस्तान में इंग्लिश इलेक्शन होने वाले हैं। तो इसलिए मैं एक जिम्मेदार बंदा हूँ, मैं किसी भी मुल्क के दाखिली मामला में मैं इंटरफेरेंस नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन एक बात मैं जरूर करूंगा कि जितने भी ये पॉलिटिशियंस लोग हैं, चाहे किसी भी तंजीम से ताल्लुक उनका है, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि आप जो है सीमा हैदर की जो सपोर्ट करना चाहते हैं, जो इलीगली सपोर्ट है, वो काइंडली आप ना करें, क्योंकि ये हिंदुस्तान की भी दुश्मन है, पाकिस्तान की भी दुश्मन है, ये समाज की भी दुश्मन है। अगर वो लोग जो है डायरेक्टली अगर सीमा हैदर की सपोर्ट करना चाहते, तो फिर मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं उनको बेनकाब करूं, और उनकी जो है जितने भी शवाहिद हैं, उनके जो सबूत हैं, वो हिंदुस्तान के अवाम को जो चीट करना चाह रहे हैं, चीट कर रहे हैं, तो फिर हम जो है उनको सामने लाएंगे। फिर हम ये नहीं देखेंगे कि वो किस पार्टी से उनका ताल्लुक है, या किस तंजीम से उनका ताल्लुक है, या लोगों के दिल में उनके लिए कितनी मोहब्बत है। आप देख रहे हैं कि कैसे एपी सिंह की उसने जो है बेइज्जती करते हुए राजवर्धन सिंह ने इंटरव्यू दिया है। और वही राजवर्धन सिंह था जो एपी सिंह के गीत गाया करता था, वही एपी सिंह था जो राजवर्धन साहब को बिठा के वो माला पहना के वो प्रोग्राम में शरीक कर रहा था। तो ये सारी चीजें हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि वो तमाम जितने भी लोग हैं वो अपनी लिमिट्स में रहें। ये केस जो है वो जो है ये समाज का केस है, तो उसमें हैदर का सपोर्ट करे तो बेहतर।